السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ثنا ریاض۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو عوام کے لیے خوش خبری آئی ہے۔ اوگرا نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں 11 روپے تک کمی کی سمری وزارت پیٹرولیم کو جاری کر دی ہے۔ اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری وزارت پیٹرولیم کو بھجوا دی گئی ہے، جس کے مطابق پیٹرول 7 روپے 6 پیسے اور مٹی کا تیل 11 روپے 88 پیسے سستا کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اوگرا کی جانب سے وزارت پیٹرولیم کو بھجوائی گئی سمری میں لائٹ ڈیزل 9 روپے 37 پیسے سستا کرنے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 5 پیسے مہنگا کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ قیمتوں میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ حکومت کرے گی، جبکہ قیمتوں میں رد و بدل پر عمل درآمد 1 جون سے ہوگا۔ عوام کے لیے بڑی خوشخبری آئی ہے۔ پیٹرول قیمتوں میں کمی کی سمری ارسال کر دی گئی ہے۔ اہم خبر ہے، پیٹرول قیمتوں میں کمی کی سمری ارسال کر دی گئی ہے۔ عوام کے لیے یہ بڑی خوشخبری آئی ہے۔ اوگرا نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں 11 روپے تک کمی کی سمری وزارت پیٹرولیم کو ارسال کر دی ہے۔ اوگرا کی جانب سے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری وزارت پیٹرولیم کو بھجوا دی گئی ہے، جس کے مطابق پیٹرول 7 روپے 6 پیسے اور مٹی کا تیل 11 روپے 88 پیسے سستا کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اوگرا کی جانب سے وزارت پیٹرولیم کو بھجوائی گئی سمری میں لائٹ ڈیزل 9 روپے 37 پیسے سستا کرنے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 5 پیسے مہنگا کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ قیمتوں میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ حکومت کرے گی، جبکہ قیمتوں میں رد و بدل پر عمل درآمد 1 جون سے ہوگا۔ بڑی خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے، اوگرا کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے، سمری بھیج دی گئی ہے اور عوام کے لیے خوشخبری۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 11 روپے تک کمی کی سمری وزارت پیٹرولیم کو بھجوا دی ہے۔ اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری وزارت پیٹرولیم کو بھجوا دی گئی ہے، جس کے مطابق پیٹرول 7 روپے 6 پیسے اور مٹی کا تیل 11 روپے 88 پیسے سستا کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اوگرا کی جانب سے وزارت پیٹرولیم کو سمری ارسال کر دی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پیٹرول مصنوعات میں کمی کی جائے۔ یہ بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے۔ عوام کے لیے مہنگائی کے اس طوفان کو کم کرتی ہوئی حکومت دکھائی دے رہی ہے۔ عوام کے لیے بڑی خوشخبری آئی ہے۔ اوگرا نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں 11 روپے تک اضافے کی کمی کی سمری وزارت پیٹرولیم کو بھجوا دی ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندہ رانا کامران سے۔ جی رانا کامران، آگاہ کیجیے گا۔ رانا کامران، آواز آ رہی ہے؟ بتائیے گا کتنی کمی تجویز پیش کی گئی ہے؟ جی بالکل، یہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ سمری جو ہے وہ وزارت خزانہ کو ارسال کر دی گئی ہے اوگرا کی طرف سے، اور یہ وزیر اعظم کی حتمی منظوری کے بعد جو ہے یہ اس پہ جو فائنل ڈیسیژن ہوگا، اور امید کی جا رہی ہے کہ 1 جون ہے، 1 جون سے پیٹرولیم مصنوعات کی کمی میں ہر طرح کمی آئے گی۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے کمی آ رہی ہے، اس کے بعد 50 پیسے اضافہ کیا جا رہا ہے ڈیزل کی قیمت میں، اور اس کے علاوہ جو دیگر مصنوعات ہیں اس میں بھی کمی کی جا رہی ہے۔ مٹی کے تیل میں 11 روپے کمی کی جا رہی ہے، اور اوگرا نے جو ہے یہ سمری وزیر اعظم کو ارسال کر دی ہے، اور 1 جون کو نئی قیمتوں کا اطلاق ہونے کے کبھی جو ہے وہ امکانات ہیں۔ جی رانا کامران، یہ بھی بتائیے گا وزارت پیٹرولیم کو جو سمری ارسال کی گئی ہے اس پر پیٹرول پمپس مالکان کا کیا کہنا ہے؟ جی دیکھیں، پیٹرول پمپ مالکان کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ جو قیمتیں ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو قیمتیں ہیں کورونا کے وبا کے بعد جو انٹرنیشنل لیول پہ جو کمی ہے، اس کے بعد پاکستان میں جو لاک ڈاؤن اور اس طرح کے جو حالات رہے، اس حوالے سے بھی ٹریفک جو ہے وہ کافی متاثر ہوئی ہے، جس سے جو کھپت ہے اس کی ڈیزل کی اور پیٹرول کی، اس میں ہر طرح کمی واقع آئی ہے۔ لیکن جو مالکان ہے، پیٹرول پمپ مالکان، ان کی جو نفع ہے اس میں تو کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ایک ریشو جو ہے یہ طے شدہ ایک ریشو ہوتی ہے، جو پیٹرول مالکان جو ہے پیٹرول پمپ مالکان جو ہے وہ جو اپنی منافع گین کرتے ہیں، تو اس میں کوئی ہر طرح کمی نہیں ہوئی۔ یہ جو بھی معاملات ہیں یہ پیٹرول کی اصل قیمت میں کمی واقع ہونے سے ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی بہت شکریہ رانا کامران صفدر، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ خاطر خواہ اس میں فرق نہیں پڑتا پیٹرول مالکان کو۔ پیٹرول کی جو سمری ہے جو وزارت پیٹرولیم کو اوگرا کی طرف سے ارسال کی گئی ہے، بہت آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا امکان۔ عوام کا کہنا ہے کہ پیٹرول سستا ہو یا سستی ہو جاتی ہیں۔ مزید جانتے ہیں علی طارق کی اس رپورٹ میں۔
कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत में मजीद 5 से 10 रुपए तक कमी का इम्कान है, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपए तक कमी हो सकती है। अवाम का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बहुत कम हैं, इस लिहाज से पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर होना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से पहले ही कारोबार तबाह हो चुके हैं। वजीर आजम को चाहिए कि पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा सस्ता करके अवाम को रिलीफ दें। सर ये पेट्रोल जाना चाहिए कम से कम 40 तक, ताकि हर बंदा गरीब से गरीब जो घर भी बैठे हैं ताकि वो भी अपना पेट्रोल वगैरह डला के काम शाम पे जा सके। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल तकरीबन 50 रुपये होना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। कम से कम 40 से 50 होना चाहिए पेट्रोल, ठीक है ना। ये हुकूमत की मेहरबानी होगी, ठीक है ना। तो पहले भी हालात ऐसे जा रहे हैं हमारे मुल्क के, ठीक है ना। तो कम से कम पेट्रोल की कुछ तो हमें फैसिलिटी सहूलत मिलनी चाहिए ना, कारोबार कुछ नहीं है। जबकि पेट्रोल स्टेशन मालिकान का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमत के लिहाज से पाकिस्तान में तेल फी लीटर 35 रुपए होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि लॉकडाउन की वजह से माहाना सेल आधी हो गई है। बिल्कुल ऐसी बात है, यहाँ पे भी वैसे ही होगा, सब कारोबार बंद हुए हैं तो इस पे भी इफेक्ट पड़ा है, सेल पे इफेक्ट पड़ा। हमारी सेल थी पहले इस फिरोजपुर रोड पे थी 30 से 35 हज़ार लीटर एक दिन की, अब वो आ गई है 18,000 15,000। ऐसा भी दिन आया हमने 4,000 लीटर सेल किया। अब देखो मेरे पास लड़के थे 72, अब 4,000 लीटर में उनके भी पर डे वेजेस निकालें तो खुद देखो कितना नुकसान हुआ मालिक को। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान है तो दूसरी तरफ आवाम की ख्वाहिश है कि पेट्रोल फी फारूक के साथ अली तारिक तोशाखाना रेफरेंस पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी जरदारी को आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया है। 11 जून को तलब कर लिया है। नैब की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की भी इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने आसिफ अली जरदारी को 11 जून को तलब कर लिया है। जज एहतसाब अदालत ने कहा, आसिफ अली जरदारी को सिर्फ आज की हाजिरी से इस्तिस्ना दे रहा हूँ। आइंदा समाअत पर आसिफ अली जरदारी हर सूरत अदालत पेश हों। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की इस्तदा करते हुए कहा कि नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को उनकी रहायश गाहों पर समन वसूल कराने और अनवर मजीद अस्पताल में जेर इलाज हैं, वहां समन वसूल नहीं किए गए। एहतसाब अदालत ने नैब की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए तोशाखाना केस के मुलजमान को 11 जून को फिर तलब कर लिया। जज ने कहा, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी 11 जून को हर सूरत पेश हों। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक है, ना कभी गैर कानूनी नैबज़दा नहीं, नैबज़दा हूँ। वजीर आजम कुछ सूबों का नहीं होता है। बतौर स्पीकर और वजीर आजम हमेशा अदलिया का एहतराम किया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक है, ना ही कभी गैर कानूनी काम किया, नैबज़दा नहीं, नैबज़दा हूँ। वजीर आजम को सूबों का नहीं, पूरे मुल्क का होता है। साबिक वजीर आजम और रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बतौर स्पीकर और वजीर आजम हमेशा अदलिया का एहतराम किया। मनी लॉन्ड्रिंग के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सऊदी अरब के बादशाह ने फारूक लगारी और नवाज शरीफ को 2 कारें दी थी। नवाज शरीफ बैरून मुल्क थे, जिसकी वजह से उन्हें सऊदी बादशाह के बतौर तोहफा दी हुई कार नहीं दी जा सकी। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि नवाज शरीफ जब बैरून मुल्क से वापस आए तो उन्होंने क़वायद ज़वाबित के तहत सऊदी किंग की दी हुई कार तलब की। क़वायद ज़वाबित के तहत सऊदी किंग की बतौर तोहफा दी हुई कार नवाज शरीफ को दे दी। वफाकी हुकूमत ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर 31 मई के लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से अहम फैसलों के लिए कौमी राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। वफाकी हुकूमत ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र 31 मई के बाद लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से अहम फैसलों के लिए कौमी राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे, जबकि वफाकी वज़रा, वज़रा आला और मुतलका हुकाम भी शरीक होंगे। इजलास में अस्करी हुकाम और NDMA के माहिरीन ब्रीफिंग देंगे। कौमी राब्ता कमेटी बाहमी मुशावरत से लॉकडाउन में नरमी या मजीद सख्ती का फैसला करेगी। कौमी राब्ता कमेटी इजलास में कोरोना वायरस के खिलाफ उठाए गए इकदाम पर गौर होगा। कौमी राब्ता कमेटी ट्रेन सर्विस को मजीद फाल करने पर मुशावरत करेगी। इजलास में NCOC के फैसलों की तौसीक होगी।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं तालीमी इदारों, शादी हॉलों और सिनेमा घरों को आवाम के मफाद में है। हिफाजती तदाबीर से कोरोना वायरस से निपटना जा सकता। पंजाब हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए मौसर इकदाम किए हैं। आवाम कोरोना वायरस से हुकूमती इकदाम का भरपूर साथ दें। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं तालीमी इदारों, शादी हॉलों और सिनेमा घरों को बंद रखने का फैसला आवाम के मफाद में है। हिफाजती तदाबीर से कोरोना वायरस से निपटना जा सकता है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए मौसर इकदाम किए हैं। आवाम कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमती इकदाम का भरपूर साथ दें। हुकूमत भरपूर इकदाम करे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि तालीमी इदारों, शादी हॉल्स और सिनेमा घरों को बंद रखने का फैसला आवाम के मफाद में है। हिफाजती तदाबीर से कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मौसर इकदाम किए हैं। आवाम कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमती इकदाम की भरपूर खिलाफवर्जी न करे और हुकूमत का साथ दे। ऐसा कहना था वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का। उनका कहना था कि लोगों को हुकूमत का साथ देना चाहिए। ये इकदाम लोगों के लिए ही किए जा रहे हैं। लोगों के हक में ये फैसला बेहतर है कि शादी हॉल्स और सिनेमा हॉल ना खोले जाएं ताकि लोग जो महफूज रह सकते हैं वो इस वायरस से महफूज रहें। और अवाम को चाहिए कि किए जाने वाले इकदाम पर अमल पैरा हों और हिफाजती तदाबीर पर भी अमल करें ताकि इस वायरस से बचा जा सके और महफूज रहा जा सके। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि आवाम को हुकूमत की दी हुई हिकमत अमली पर गौर करना चाहिए। इकदाम के हवाले से भी उनका कहना था कि लोगों को भरपूर साथ देना चाहिए। हुकूमत अकेले ही कुछ भी नहीं कर सकती, लोगों का साथ जरूरी है। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों, शादी हॉल्स और सिनेमा घरों को बंद रखने का फैसला आवाम के मफाद में है। हिफाजती तदाबीर से कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मौसर इकदाम किए हैं। अवाम कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमती इकदाम का भरपूर साथ दें। अवाम कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमती इक़दाम का भरपूर साथ दे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं तालीमी इदारों, शादी हॉलों और सिनेमा घरों को बंद रखने का फैसला आवाम के मफाद में किया है। हिफाजती तदाबीर से कोरोना वायरस से निपटा भी जा सकता है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए मौसर इक़दाम भी किए हैं। अवाम कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमती इक़दाम का भरपूर साथ दें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ईद से पहले वाला लॉकडाउन शेड्यूल कर दिया गया। दोनों सूबों में आज से एतवार तक बाजार बंद रहेंगे। पीर से जुमेरात सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कारोबार करने की इजाजत होगी। तफसीलात के मुताबिक पंजाब में इससे पहले वाला लॉकडाउन शेड्यूल बहाल कर दिया गया है। आज से इतवार तक बाजार बंद रहेंगे। पीर से जुमेरात सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कारोबार की इजाज़त होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर का कहना है कि आइंदा हफ्ते पीर से जुमेरात तक कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त है। उन्होंने कहा कि सूबे में शाम 5 बजे के बाद ज़रूरी दुकानों के अलावा तमाम दुकानें बंद रहेंगी। अलबत्ता जनरल स्टोर, सब्जी, फल और गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। अजमल वजीर का मजीद कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ हजाम की दुकानें और सल्यून हफ्ते में 3 दिन जुमा, हफ्ता और इतवार को खुले रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात का यह भी कहना है कि सूबे भर में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। अवाम के लिए एक और खुशखबरी, महकमा रेलवे का 31 मई के बाद भी एडवांस बुकिंग जारी रखने का फैसला किया है। के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान चलाई जाने वाली 15 ट्रेनों के एडवांस बुकिंग जारी कर रहे हैं। ट्रेनों की टिकट्स की बुकिंग ऑफिस में सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुली रहेंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रेलवे के तमाम डिवीजन सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत भी जारी कर दी गई है कि अगले अहकामात तक एडवांस बुकिंग जारी रखी जाए। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस जमाल खान का कोरोना वायरस कटा है, जिसके बाद आइसोलेशन में चले गए। तर्जुमान के मुताबिक चीफ जस्टिस घर में ही अहम अमूर सर अंजाम दे रहे हैं और उनकी हालत भी बेहतर हो रही है। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस जमाल खान का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आ गया, जिसके बाद वो आइसोलेशन में चले गए। तर्जुमान के मुताबिक चीफ जस्टिस घर से अहम अदालती अमूर सर अंजाम दे रहे हैं और उनकी हालत बेहतर हो रही है।
वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं सख्त लॉकडाउन की तरफ जाने का कोई फौरी इरादा नहीं है। मुल्क में मुआशी जारी रखने की ज़रूरत से मुतालिक हुकूमत या वज़ीर आज़म ज़हन में कोई कन्फ्यूजन नहीं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के बायस कुछ बड़े शहरों के अस्पतालों पर दबाव के इतलात हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अस्पतालों में सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। उन्होंने कहा कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद अब भी इससे कबल लगाए गए तखमीने से कम है। उन्होंने कहा कि आवाम की जानिब से SOPs के खिलाफ वर्जी के इतलात पर तशवीश का इजहार है। उन्होंने कहा मुल्क में सख्त लॉकडाउन के नफाज का कोई फैसला नहीं किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 57 मरीजों का इंतकाल हो गया। तादाद 1317 है। मजीद 2636 अफराद ने वायरस की तशखीस हो चुकी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 64,028 तक पहुंच गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 2636 केसेस रिपोर्ट हुए और मजमूई तौर पर 22,305 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज सिंध में हैं, जहां तादाद 25,309 तक पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस की वजह से पंजाब में 22,964, खैबर पख्तूनख्वा में 8,842, बलूचिस्तान में 3,928, इस्लामाबाद में 2,100, गिलगित बल्तिस्तान में 658 और आजाद कश्मीर में 227 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना वायरस के बाद सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, जहां 432 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 396, पंजाब में 410, इस्लामाबाद में 22, गिलगित बल्तिस्तान में 9, बलूचिस्तान में 43 और आजाद कश्मीर में 5 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 11,931 टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 5,20,017 टेस्ट किए जा चुके हैं। आपको बताएं कि कोरोना दुनिया भर में 3,62,000 इंसान मरीजों की तादाद 59,05,000 से तजावुज कर गई। दुनिया में कोरोना की तादाद 59,05,415 हो गई और 3,62,000 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 25,79,916 सेहतयाब हुए। अमेरिका में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1,03,000 से बढ़ गई है और कोरोना के मरीजों की तादाद 17,68,000 से ज्यादा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको मज़ीद अपडेट करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से कि कोरोना वायरस के हवाले से कितनी इससे पहले भी हलाकतें हो चुकी हैं। अब आपको आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात चौथे रोज भी जारी है। फ्रांसीसी टीम का एक बार फिर से जाए हादसा का दौरा, 7 रोज बाद 50 मैयतें उर्सा के हवाले कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक एयरबस कंपनी की जानिब से कराची तैयारा हादसे के चौथे रोज भी तहकीकात जारी हैं। फ्रांसीसी माहिरीन मजीद मालूमात हासिल करने की गरज से एक बार फिर जाए हादसा पर मौजूद हैं। इनके हमरा पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन के माहिर भी मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज मिलने वाला कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के हवाले कर दिया गया है। तैयारा हादसे केस में शोहदा के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी शुरू कर दी गई है। PIA का कहना है कि 36 अफराद को 10 लाख फीकस मुआवजा अदा कर दिया गया है। बकिया मुसाफिरों के उर्सा को भी 1-2 दिन में मुआवजा अदा कर दिया जाएगा। लवाहिकीन की 15 फैमिलीज फिल वक्त मुआवजा लेने से इनकार कर रही हैं। इंश्योरेंस की मद में लवाहिकीन को फीकस 50 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। इस सिलसिले में 97 मुसाफिरों में से 57 अफराद की फहरिस्त तैयार कर दी गई है। बकिया मुसाफिरों के उर्सा को भी 1-2 दिन में मुआवजा अदा कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं टिड्डी दल के हवाले से। सिंध में टिड्डी दल के हमले, महकमा ज़राअत के तमाम अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू कहते हैं विफाक इंतजार में है कि टिड्डी दल फसलों को नुकसान पहुंचाए ताकि बैरूनी मुमालिक से चंदा मिल सके। टिड्डी दल ज्यादा रेगिस्तानी इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचाती है। महकमा ज़राअत की टीमें टिड्डी दल के खात्मे के लिए दिन रात काम कर रही हैं। रेगिस्तानी इलाकों में सर्वे टीमें अलर्ट में हैं। सर्वे और मॉनिटरिंग भी की जा रही है। टिड्डी दल के वार जारी हैं। कई इलाकों में अब तक टिड्डी दल ने हमला करके फसलों को तबाह कर दिया है। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है और किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह से फसलों को नुकसान पहुंचता रहा तो कहत या फिर बहरान का खतरा पैदा हो सकता है। सिंध में टिड्डी दल के हमले, महकमा ज़राअत के तमाम अफसरान
और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। वजीर ज़राअत इस्माइल राहू कहते हैं कि विफाक इंतजार में है कि टिड्डी दल फसलों को नुकसान पहुंचाए ताकि बैरून मुल्क से चंदा मिल सके। टिड्डी दल ज्यादा रेगिस्तानी इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचाती है। महकमा ज़राअत की टीमें टिड्डी दल के खात्मे के लिए दिन रात काम कर रही हैं। रेगिस्तानी इलाकों में सर्वे टीमें अलर्ट हैं। सर्वे और मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इस हवाले आपको बताएं कि टिड्डी दल के वार जारी हैं और टिड्डी दल से शदीद नुकसान भी पहुंचा है फसलों को, और काश्तकारों का कहना है कि जिस तरह से नुकसान हो रहा है हमें खदशा है कि बहरान पैदा ना हो जाए। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मलिक मुनव्वर से। जी मलिक मुनव्वर, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह सूबा सिंध बिलखसूस जो बदीन और ठट्ठा दीगर इलाके हैं, इनमें टिड्डी दिल के हमले जो है वो शिद्दत के साथ जारी हैं। कोरोना के बाद टिड्डी दिल ने जो है वो ताबड़तोड़ अपने हमले जारी रखे हुए हैं और जो फसलें हैं उनको शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तब इस हवाले से सूबाई वजीर ज़राअत इस्माइल राहू का कहना है कि वफाकी हुकूमत जो है वो सिर्फ इस इंतजार में है कि माशियत और फसलें जो मुकम्मल तबाह हों ताकि उनको बैरून ममालिक से जो है वो फंड ले सके, चंदा जमा कर सके, मगर उन्हें किसानों के हवाले से कोई पुरसान हाल नहीं था। उनका कहना था कि महकमा ज़राअत ने तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और इस हवाले से जो है वो स्प्रे भी किए जा रहे हैं फसलों में, मगर टिड्डी दिल के हमले जो है वो शिद्दत के साथ जो है वो फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो आम की फसल हो या कपास हो या दीगर जो फसलें हैं उनको शदीद टिड्डी दिल के हमलों से जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। हम आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे कबल भी टिड्डी दिल ने सिंध का रुख किया था, मगर कुछ दिन गुजरने के बाद वो यहाँ से उसने अपना डेरा कूच कर ली था, मगर एक बार फिर टिड्डी दिल ने जो है वो सिंध के मुख्तलिफ जिला में अपने हमले जारी रखे हुए हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि पंजाब और के दीगर बलूचिस्तान के जिला में भी ये उनके हमले जारी हैं। तब इस हवाले से किसान मलिक मुनव्वर ये भी बताइएगा कि किसान अपनी मदद आपके तहत क्या कर रहे हैं कि टिड्डी दल को भगाया जा सके? जी, टिड्डी दल किसान अपनी मदद आपके तहत जो स्प्रे भी कर रहे हैं और तीनों के डब्बे उठा के उनको बजा बजा के टिड्डी को जो है वो भगाने की कोशिश करते हैं, मगर टिड्डी दिल है कि वो भागने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी वाफर मुकदार में जो है वो टिड्डी दिल ने यहाँ पर अपना डेरे जमा लिए हैं कि वो फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा रही है। जब तक उनको कोई ठोस और बड़े तरीके पर जो है वो इस टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होता और उसके स्प्रे वगैरह जो है वो फसलों पे नहीं होते, उस वक्त तक इन फसलों को बचाना टिड्डी दल से मुमकिन दिखाई मलिक मुनव्वर हुसैन, ठीक है, ये तो बात आपने बता दी, लेकिन हुकूमत की तरफ से स्पोर्ट लाइन और हॉटलाइन हेल्पलाइन भी जारी की गई है। 24 घंटे आप उससे रब्ता कर सकते हैं। क्या यहाँ के जो मकामी किसान हैं उन्होंने रब्ता किया हेल्पलाइन पर? जी, अभी तो यहाँ पर हेल्पलाइन के हवाले से किसान तो देखें अब जिस दिन से टिड्डी के हमले जारी हैं, किसान तो बेचारे दहाइयाँ देते नजर आ रहे हैं। मुसलसल वो अरबाब इख्तियार से अपीलें भी कर रहे हैं, राब्ते भी कर रहे हैं और महकमा ज़राअत से भी वो अप्रोच कर रहे हैं, मगर अभी हुकूमत सिंध ने जो है इस हवाले से सूबाई जो वजीर हैं महकमा ज़राअत के, उन्होंने कहा है कि वो अपनी मदद आपके तौर पर जहाँ तक मुमकिन हो सकता है कि इस हवाले से करें, मगर उनका कहना है कि वफाकी हुकूमत ने इंडेक्स तो कैम कर दी है मगर बहुत तखीर की जा रही है टिड्डी दल को हवाले से जो है वो उसके इक़दाम नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों का ये भी कहना है कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक जो है इस वक्त टिड्डी दल के वार। जी, बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। किसानों का कहना है कि कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक टिड्डी दल के हमले हैं क्योंकि इससे फसलों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है और बहरान का खतरा भी है। कराची त्यारा हादसा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश, हुकूमत का अब तक होने वाले तमाम त्यारा हादसा की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। इमरान खान ने सिविल एविएशन हुकाम पर इजहार बरहमी किया। उन्होंने कहा कि जाँ बहने वालों के लवाहिकीन को हादिसात की वजूहात जानने का हक हासिल है। रिपोर्ट्स पब्लिक होंगी तो मुस्तकबिल के लिए मुअस्सर इक़दामात हो सकेंगे। वज़ीर आज़म ने कराची त्यारा हादसे की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा PTI हुकूमत शफाफियत पर यकीन रखती है। त्यारा हादसात को कई साल गुजर गए मगर तहकीकाती रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई? तमाम त्यारा हादसात की तहकीकाती रिपोर्ट्स को पब्लिक किया जाए।
वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं तैयारों को पेश आने वाले रिपोर्ट्स में किसी को बचाया ना किसी को फंसाया जाएगा। 22 जून को पार्लियामेंट और अवाम के सामने रख दिया जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफ करते हुए गुलाम सरवर खान का कहना था कि कराची में तैयारे का यह हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और जिम्मेदारान कौन है, इससे पूरी कौम का ताल्लुक है। एयरबेस कंपनी की 11 रुकनी टीम तहकीकात कर रही है। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने हर चीज को अपने कब्जे में ले लिया है। फ्रांस में डिकोड के बाद सारी चीजें सामने आ गई हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि एक हादसा 2010 में भी हुआ। आज एतराजात करने वाले बताएं कि उस वक्त क्या किया था। पिछली हुकूमतों ने रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं की तो हम क्या करेंगे। पीआईए का पायलट काबिल एहतराम हमारा भाई है। पायलट के लवाहिकीन को यकीन दिलाता हूं कि शफाफ तरीके से इंक्वायरी की जाएगी। रिपोर्ट में किसी किस्म की मुदाखलत का सोचा भी नहीं जा सकता। बात कर लेते हैं कुछ उमरा के हवाले से। सऊदी हुकूमत का उमरा और जियारत पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। सऊदी वजारत हज का कहना है आहिस्ता आहिस्ता मामूलात जिंदगी बहाल कर रहे हैं। आलमी सतह पर सूरत हाल बेहतर होने पर मजीद फैसले किए जाएंगे। सऊदी हुकूमत का उमरा और जियारत पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। सऊदी वजारत हज का कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता मामूलात जिंदगी बहाल कर रहे हैं। आलमी सतह पर सूरत हाल बेहतर होने पर मजीद फैसले किए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अमन मिशन में पाकिस्तान का मिसाली किरदार। 2 लाख से ज़ायद जवानों और अफसरों ने अमन मिशन में हिस्सा लिया। 24 अफसरान और 157 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान अमन मिशन में ख़वातीन को भेजने वाला वाहिद मुल्क है। पाकिस्तानी फौज की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अमन के हवाले से खदमात सर अंजाम देने की तावील तारीख है। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वाबस्तगी की जड़ें गहरी हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसी साल अमन मिशन को ख़ातीन के नाम कर दिया था। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत इख्तियार की, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए खदमात का आगाज 1960 में हुआ, जब पाकिस्तान ने कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के ऑपरेशंस में अपना पहला दस्ता तैनात किया था। जिसके बाद मुसलसल 60 सालों से पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को पूरी दुनिया में नाफिज करने में मुअव्वल रहा। आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की पुरअमन फौज की कारकर्दगी को बड़े पैमाने पर तस्लीम किया। पाकिस्तान ने दुनिया के 28 ममालिक में 2 लाख से ज़ायद फौज के हमरा 40 मुश्तरका मिशंस में हिस्सा लिया। इन हंगामी खैज़ खैतों में इंसानियत की मदद करने और अमन बहाल करने के लिए 24 अफसरान समेत 157 पाकिस्तानी जवानों ने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया था। पाक फौज के दस्ते कांगो, वस्ती अफ्रीका, जमहूरिया, जनूबी सूडान, दारफोर और सोमालिया, मगरबी सहारा, माली और कब्ज़र में खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने पसमानदा इलाकों में मुश्किल हालात से निमटने के लिए ख़ातीन की नुमाइंदगी और दर्जाबंदी पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो दी है। तो दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान यूएन आलमी अमन के लिए काम जारी रखेगा और इस मकसद के हसूल के लिए इसका आज़म। अमन फौज के आलमी दिन पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम महना था कि इस दिन पाकिस्तान बहादुर अमन फोर्सेस की कुर्बानियों के जज्बे की याद मनाना है। उन्होंने कहा कि अमन के पैगंबर दुनिया में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हैं। यूएन चार्टर के तहत आलमी अमन के लिए पाकिस्तान काम जारी रखेगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी अमन दस्ते दुनिया भर में इंसानियत की खिदमत जारी रखे हुए हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि नॉर्वे में फंसे पाकिस्तानी शहरियों को वतन वापस लाने के लिए खुसूसी प्रवास इस्लामाबाद से रवाना। कौमी एयरलाइन पाकिस्तानियों को लेकर रात को वापस पहुंचेगी। पाकिस्तानी शहरियों को वतन वापस लाने के लिए पीआईए की जानिब से बोइंग 77 जहाज भेजा गया है। कौमी एयरलाइन के खुसूसी परवाज का ओस्लो से पाकिस्तानी शहरियों को लेकर इस्लामाबाद के लिए आज शाम ही रवाना होगी। पीआईए अब तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के बायस किए गए लॉकडाउन में फंसे हजारों पाकिस्तानी मुसाफिरों को वतन वापस ला चुकी है। मुख्तलिफ गैर मुल्की एयरलाइनों के जरिए भी मुख्तलिफ मुल्कों से हजारों पाकिस्तानी वतन वापस पहुंचे हैं। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध में आज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद के कुछ से मौसम खुशगवार होगा।
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अगले 5 रोज तक बादल मशरकी बलोचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल तक बादल खूब बरसेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, झेलम, चकवाल, अटक, मियांवाली, सरगोदा और भक्कर में बारिश मुतवक्के है। खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में भी अब्र करम बरसेगा, जिससे दर्जा हरारत में कमी हो जाएगी। आज रात और कल कोयटा, योब, हरनाई, बारखान और डेरा बुगटी में भी तेज बारिश की उम्मीद है। पीर के रोज मीरपुर खास, बदीन और हैदराबाद में भी बाराने रहमत का इम्कान है। और अब टुडे इंटरनेशनल। आलमी उफक से आपको खबर दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया को ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद करने से मुतालिक सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर को बंद करने की धमकी। सोशल मीडिया की इजारादारी को ख़त्म करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेट कंपनियों से मुतालिक इंतजामी हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत सोशल मीडिया को ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियां अब गैर जानबदार फोरम नहीं रही। सोशल मीडिया कंपनियां सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हो चुकी हैं। और अब टुडे स्पोर्ट्स। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, कौमी टीम के बॉलिंग कोच और साबिक फास्ट बॉलर वकार अकाउंट एक बार फिर से हैक हो गया। दिल बर्दाश्ता होकर सोशल मीडिया ही छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हैकर ने नाजीबा वीडियो लाइक की, मुझे अपनी फैमिली ज़्यादा असीस है, आइंदा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करूंगा। कौमी टीम के बॉलिंग कोच और साबिक फास्ट बॉलर वकार यूनुस ने सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान कर दिया। वकार यूनुस ने कहा कि किसी अल्लाह के बंदे ने मेरा ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया है। सुबह उठा तो पता चला मेरे अकाउंट से एक गलत वीडियो को लाइक किया गया है, जो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बड़ी अफसोसनाक, तकलीफ दे और शर्मनाक बात है। मैं समझता था कि सोशल मीडिया एक दूसरे से राबता करने का जरिया है। किसी को इससे तकलीफ हुई हो तो माजरत खा हूं। उन्होंने कहा कि इस इंसान से पहली बार नहीं, इससे पहले भी मेरा अकाउंट हैक किया। ये इंसान तो बाज नहीं आएगा, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, मुझे अपनी फैमिली ज्यादा अजीज है, आइंदा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करूंगा। T20 वर्ल्ड कप कब होगा? आईसीसी के इजलास में फैसला ना हो सका। 10 जून के इजलास में दोबारा गौर की अरकान ने क्रिकेट बोर्ड से मुशावरत जारी रखने का फैसला कर लिया गया है। वर्ल्ड T20 फैसले के लिए होने वाला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का बोर्ड इजलास नए तनाज़े का शिकार हो गया, जिसके बाद गैर रवायती अंदाज में इजलास के तमाम एजेंडे मौखर कर दिए गए। आईसीसी बोर्ड में राजदारी की खिलाफ वर्जी पर रुकन ममालिक ने नाराजगी का इजहार किया, जिसके बाद इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने सरबराही में मुनक्कद इजलास में T20 वर्ल्ड कप के मुस्तकबिल के बारे में कोई फैसला ना हो सका। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखिए टुडे खबर सबसे पहले।